जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय राधा माधव धन जो कैपिटलिस्ट होगा वो तो क्या होता है क्या बोलेंगे जो धन बिजनेसमैन जैसा है ना कैपिटलिस्ट। हाँ और ये कम्युनिस्ट वाले तो क्या बोलेंगे वो सब प्रजा के हैं। हाँ ऐसे हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का इस हमारे वीकली संगम में स्वागत है। आप लोग ने लास्ट डिस्कशन में हमने प्रजल्प और नियमग्रह और जरासंधस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग लौल्यम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे और फिर आगे और भी छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे जरासंधस से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स है वो भी हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और तो आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं रीडिंग करना शुरू करता हूँ। One should also avoid association with Mayavadis who simply blaspheme Vaishnavas, devotees. Mukti-kamis who are interested in material happiness, Mukti-kamis who desire liberation by merging with the existence of the formless absolute Brahman, and Siddhi-kamis who desire the perfection of mystic yoga practice are
are classified as atyaharis. To associate with such person is not at all desirable. Desires to expand the mind by perfecting mystic yoga, merging in the existence of Brahman, or attaining whimsical material proper prosperity are all included within the category of greed, laulya. All attempts to acquire such material benefits or so-called spiritual advancement are impediments on the path of Krishna consciousness. Modern warfare waged between capitalists and communists is due to their avoiding the advice of Srila Rupa Goswami regarding atyahara. Modern capitalists accumulate more wealth than necessary, and the communists, envious of their prosperity, want to nationalize all wealth and property. Unfortunately, the communists do not know how to solve the problem of wealth and its distribution. Consequently, when the wealth of the capitalists fall into the hands of the communists, no solution results. Opposed to these two philosophies, the Krishna conscious ideology states that all wealth belongs to Krishna. Thus, unless all wealth comes under the administration of Krishna, there can be no solution to the economic problem of mankind. Nothing can be solved by placing wealth in the hands of the communist or the capitalist. If a $100 bill is lying on the street, someone may pick it up and put it in his pocket. Such a man is not honest. Another man may see the money and decide to let it remain there, thinking that he should not touch another's property. Although this second man does not steal the money for his own purposes, he is unaware of its proper use. The third man who sees the $100 bill may pick it up and find the man who lost it and deliver it to him. This man does not steal the money to spend for himself, nor does he neglect it and let it lie in the street. By taking it and delivering it to the man who has lost it, this man is both honest and wise. Simply transferring wealth from capitalists to communists cannot solve the problem of modern politics, for it has been demonstrated that when a communist gets money, he uses it for his own sense gratification. The wealth of the world actually belongs to Krishna, and every living entity, man and animal, has the birthright to use God's property for his maintenance. When one takes more than his maintenance requires, be he a capitalist or a communist, he is a thief. And as such, he is liable to be punished by the laws of nature. The wealth of the world should be used for the welfare of all living entities, for that is the plan of Mother Nature. Everyone has the right to live by utilizing the wealth of the Lord. When people learn the art of scientifically utilizing the Lord's property, they will no longer encroach upon one another's rights. Then an ideal society can be formed. The basic principle for such a spiritual society is stated in the first mantra of Sri Ishopanishad. Isavasam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjitha mavrira prashashvidanam. Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and should not accept other things, knowing well to whom they belong. Krishna conscious devotees know very well that this material world is designed by the complete arrangement of the Lord to fulfill all the necessities of life for all living beings, without their having to encroach upon the life or rights of one another. This complete arrangement affords the proper quota of wealth for everyone according to his real needs, and thus everyone may live peacefully according to the principle of plain living and high thinking. Unfortunately, materialists who have neither faith in the plan of God nor any aspiration for higher spiritual development misuse their God-given intelligence only to augment their material possessions. They devise many systems such as capitalism and materialistic communism to advance their material position. They are not interested in the laws of God or in a higher goal. Always anxious to fulfill their unlimited desires for sense gratification, they are conspicuous by their ability to exploit their fellow living beings. When human society gives up these elementary faults enumerated by Srila Rupa Goswami, atyahara, etc., all enmity will cease between man and animals, capitalists and communists, and so forth. In addition, all problems of economic or political maladjustment and instability will be solved. This pure consciousness is awakened by the proper spiritual education and practice offered scientifically by the Krishna Consciousness Movement.
This Krishna consciousness movement offers a spiritual community that can bring about a peaceful condition in the world. Every intelligent man should purify his consciousness and rid himself of the above mentioned 6 hindrances to devotional service by taking wholehearted shelter of this Krishna consciousness movement. तो फिर हमने भी तात्पर्य देखा था आगे ये प्रज्वल लॉयलम के बारे में ग्रीड। तो फिर कोई कुछ इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है जो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। जो लॉलियम से पहले यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताता है ना परपट में कि एसोसिएशन के बारे में, दैट्स अबाउट संघ, जन संघ के बारे में, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला था पहले, भक्त सन्निवास करके यहाँ पर किस किस के साथ ये नहीं वास नहीं करना चाहिए, किस किस के साथ संग नहीं करना चाहिए करके प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, भुक्ति कामी हो गए और फिर मुक्ति कामी हो गए, है ना, और फिर सिद्धि कामी हो गए, मिस्टिक पावर का जो ये करते हैं, तो ये भी सब अत्याहारी है ना। तो इनके साथ भी यदि हम संग करते हैं, भले ही देखने में ये लोग सिद्धि कामी हो गए, है ना, मुक्ति कामी हो गए और भुक्ति कामी जो भी है, देखने में साधु के भेष में ही रहते हैं ज़्यादातर, जिनको भी ये कामना रहता है, लेकिन हम उनके साथ संग करेंगे तो उसको भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट डिजायरेबल करके। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इट इज़ नॉट एट ऑल डिजायरेबल, मतलब इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज जनसंग, जो वर्ल्डली माइंडेड पीपल, बिकॉज दिस ये भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में नहीं है, ये भी मटेरियल प्लेटफॉर्म में ही है ना। मटेरियल प्लेटफॉर्म मतलब वर्ल्डली माइंडेड के ही कैटेगरी में आ गए ये लोग, हाँ, भुक्तिकामी सिद्धिकामी, है ना, ये लोग। तो इसीलिए इनको प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनका संग भी नहीं करना चाहिए करके, जनसंघ के परिप्रेक्ष्य में, जनसंघ के इसमें, है ना, कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी आते हैं लॉलियम के बारे में, जो हमारा ये भी एक तरफ का क्या है, ये भी एक प्रकार का अत्याहार भी है। ये जो तीन कामना, और लॉलियम भी है, लोभ भी है। बहुत ज़्यादा लोभ है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करना है, मुझे उड़ना है, मुझे धन चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए करके जो तपस्या करते हैं, और फिर जो ब्रह्म में ऐसा प्रवेश करना, लीन होना चाहते हैं, वो भी, उनका भी यही लॉलियम है, लोभ है ना। तो जो कृष्ण कॉन्शियस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जो लोभ या जो इच्छा, तो उसके अलावा एवरीथिंग इज लॉलियम, है ना। तो वो भी नहीं होना चाहिए करके बोलते हैं प्रभुपाद जी। और इसमें भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं ना कि जो कम्युनिस्ट का माइंडसेट क्या है, और फिर ये जो कैपिटलिस्ट मतलब किस प्रकार उनका फंक्शनिंग होता है करके। जैसे इधर किसने प्रभुपाद के तात्पर्य में भी लिखा है कि जो वार, मतलब जो अनबन होता है कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में, ये भी मतलब अत्याहार से, मतलब उसके रिगार्ड्स में ही होते हैं। मतलब रूप गोस्वामी को फॉलो नहीं करता। हाँ, उन्होंने अत्याहार के बारे में बोला है। और जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट है, ये मतलब ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उन लोगों को जो चाहिए उससे ज़्यादा अधिक, ताकि और आगे के और जनरेशन्स के लिए भी वो लोग एक्यूमुलेट करते हैं, और अपने लिए भी जितना चाहिए उससे अधिक ही एक्यूमुलेट करते हैं। और फिर जो कम्युनिस्ट होते हैं, उनको असल में तो मतलब इसके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन वो लोग असली में भी ये नहीं मालूम होता है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाए। जो एक्स्ट्रा मनी है, या वो मनी को कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं हम लोग, द रियल पर्पस कहाँ पे हम लोग को कर सकते हैं, तो इसका भी वो लोग को मतलब नॉलेज नहीं है। तो फिर जब जो कैपिटलिस्ट होता है, जब उनका कैसे बोलते, उनका जो बिल्डिंग बोले या कुछ भी, उनका धन संपत्ति जब कोलैप्स हो जाता है, या फिर जब कम्युनिस्ट के हाथ में आ जाता है, तो फिर उनके पास असल में मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता।
कि फिर हम लोग इसको कैसे उपयोग करेंगे, और लोग एकदम ब्लैक हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब जो प्रभुपाद ने लिखा है कि ये दोनों फिलोसॉफी, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के फिलोसॉफी को मतलब हम लोग अपोज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और सबसे अच्छा तो ये कि हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो सारा वेल्थ है, जो सारा धन संपत्ति है, वो सारे मतलब भगवान कृष्ण के हैं। तो उसी भगवान कृष्ण की सेवा में ही उसको उपयोग करने से वो सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट मतलब सॉल्विंग वो है सॉल्यूशन। ऑल्सो प्रभुपाद गिव्स वन एग्जाम्पल, है ना, किसी को एक $100 मिलता है और वो $100 अपने पास रख लेता है, तो वो गलत इंसान है ना। और फिर उसके बाद किसी को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में फिर एक और किसी को $100 मिलता है और वो $100 जा करके मतलब वो छूता नहीं, उसको ऐसे छोड़ देता है ना। तो वो न्यूट्रल है, उसको कुछ ऐसा मतलब नहीं, लेकिन हाँ उसने उसकी तरफ से मतलब एटलीस्ट ऑनेस्ट है कि उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तीसरा पर्सन है, वो $100 उठाता है और वो ढूंढता है कि किसका ये $100 है और राइट पर्सन को जाके हैंड ओवर करता है। सो ही इज द मतलब ये सबसे ज़्यादा करेक्ट इंसान ये है ना, क्योंकि उसने ढूंढ करके कौन है जो ओनर है, हाँ उसको ढूंढ करके उसने दिया है, हाँ है ना। तो वो सबसे ऑनेस्ट पर्सन वो है, और बुद्धिमान ऑनेस्ट एंड वाइस करके बोला है ना प्रभुपाद जी। तो ऑनेस्ट एंड वाइस वो है। तो ये उसी प्रकार है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सिंपली ये जो कैपिटलिस्ट का धन, जैसे राधापति प्रभु ने बोला ना, कैपिटलिस्ट का धन कम्युनिस्ट के हाथ में आ जाएगा तो फिर वो कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, है ना। हाँ सॉल्व नहीं होगा, उल्टा बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, केओस मच जाता है। जैसे हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखा है, जहाँ पर भी बहुत सारे जगह में जहाँ पर भी ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया, World War II के बाद में या World War I-II के बाद में जहाँ पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया, वहाँ पर बहुत सारे मतलब अपने ही देश के लीडर ने अपने ही देश के जनता को कितना मैसेकर से कितने लोगों को, हजार लाख लोगों को मार डाला है ना। तो फिर ये भी एकदम गलत है। और इसीलिए सबसे बेस्ट प्रभुपाद जी देते हैं सर्वक्षम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्तेन तेन पुंजितं माकृत कस्य धनम। ईशोपनिषद फर्स्ट टेक्स्ट का एग्जाम्पल और प्रभुपाद जी कोट करता है। और इसीलिए ईशोपनिषद में सभी इसको बोलते हैं ईशावास्यम प्रिंसिपल, मतलब जो ये सभी कुछ भगवान का है, और जितना हमें जरूरत है उतना अर्जन करके हमें उतना ही प्रयोग में लेके आना चाहिए। वी शुड नॉट हैंकर फॉर है ना मोर एंड मोर। जितना हमारे लिए उपयुक्त है, जितना हमारे लिए जरूरी है, उतने के पीछे ही दौड़ना चाहिए करके, है ना। तो अगर ये प्रिंसिपल ये हो जाएगा तो फिर लॉन्डली भी और ये सब एकदम खत्म हो जाएगा। तो इधर में जो अभी जो बताते थे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का, कैपिटलिस्ट माने तो असल में तो वो बिजनेस क्लास का है, बिजनेस क्लास का जो हमेशा धन संपत्ति को, उसके पास पहले से धन संपत्ति होता है, फिर भी वो बढ़ाने का हमेशा कोशिश करते रहते हैं। उसमें से अगर कुछ भी घट गया तो उस पर क्या बोलते हैं, बहुत छुपता ट्रबल, क्या बोलते हैं, हाँ वो अपने आप को बहुत ट्रबल हो जाता है। तो उसका धन संपत्ति जितना भी है वो क्या करता है, ये कैपिटलिस्ट लोग इन्वियस को ईर्षा करने की वजह से क्या करता है कि बोलता है कि जो भी आप लोग धन संपत्ति कमा रहे हैं वो सब प्रजा, जो भी प्रजा है वो सबके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब भी वो प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर मान लो ये कैपिटलिस्ट का जितना भी धन है आ गया ये कम्युनिस्ट के हाथ पे, तब भी वो क्या करेंगे, वो अपना खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही से क्या बोलेंगे, समाज में जितना भी प्रॉब्लम है वो सब यही से आता है। और बोला ये प्रभु जी ने बताया, हरिचंद्र प्रभु जी ने बताया कि जितना भी धन संपत्ति ये संसार में है वो सब भगवान ने सभी जीवों के लिए बनाया है। अभी भी बताया ना ईशावास्यम सर्वम, उधर में क्या है कि जितना भी जीव है उसका अपना अपना कितना हिस्सा वो धन संपत्ति क्या बोलेंगे, नेचर से मिलेंगे, प्रकृति से मिलेंगे, वो सब फिक्स करके रखा है। तो हम लोग उससे ज़्यादा और हम लोग ज़्यादा लेने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए और इच्छा भी नहीं रखना चाहिए। तो अपना अपना जितना भी कोटा है उसके अंदर में ही हम लोग सुखी रह सकते हैं। और आगे भी बोला है ना, तो ये सारी हम लोग करेगा कि हम लोग जितना भी कर रहा है, जो भी कर रहा है वो हम लोग के पहले से फिक्स है,
और हम लोग उससे ज़्यादा और नहीं तो कम हम लोग नहीं मिलने वाला। हम्म, तो हम लोग ऐसा सोच के काम करेगा तो हम लोग सिंपल लिविंग, इधर पे हाई थिंकिंग बोला है ना, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अब हम लोग उसके भावना पे हम लोग आसानी से अच्छा से रह सकता है। तो जो सिंपल लिविंग हाई हम्म, हाई थिंकिंग तो नहीं हो रहा है लोगों से, है ना, लॉलियम के कारण। हाँ हाँ, हाई लिविंग और जीरो थिंकिंग हो रहा है, नो थिंकिंग हो रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इस संसार में केओस मच रहा है। वही तो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लास्ट में कंक्लूड करता है ना बहुत अच्छे से कि कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट ऑफर करता है हाँ स्पिरिचुअल कम्युनिटी। हाँ, कि ये ये जितने भी 6 ये है जिससे भक्ति में बाधा आता है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो यहाँ हमारे मूवमेंट में सिखाया जाता है प्रभु। और फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में आश्रय लेकर के हम ये 6 प्रकार के इससे हम बच सकते हैं। दोष से हम बच सकते हैं, है ना। इधर एक प्रभुपाद ने भी लिखा है कि अगर हम लोग मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी है, अगर हम लोग ये सब मतलब कृष्ण के ऊपर लगाएंगे, कृष्ण कॉन्शियस में लगाएंगे, जो हमारा जो एलिमेंट्री फोर्स वगैरह जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। जो और फिर साथ में जो एनमिटी है, जो मतलब दुश्मनी है एक दूसरे के बीच में, या तो कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट के बीच में हो या रिलीजन के बेस में हो, वो सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और साथ में जो सारे प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जितने भी इंस्टेबिलिटी होता है पॉलिटिकल, या फिर जो भी माल एडजस्टमेंट हो गया, जैसे घूस खाना, ये सब माल एडजस्टमेंट हो गया, इंस्टेबिलिटी, ये सब मतलब वो सॉल्व हो जाएगा। और वो प्रॉब्लम मतलब क्रिएट नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो जाएगा जब हम लोग सब मतलब ये कृष्ण कॉन्शियस में फोकस करेंगे और सब चीज को मतलब कृष्ण की ओर डाइवर्ट करेंगे। और इसमें प्रभुपाद ने भी आगे लिखा है कि दिस प्योर कॉन्शियसनेस इज अवेकन्ड बाय द प्रॉपर स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफर्ड साइंटिफिकली बाय द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। ये सही है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं ताकि ये सब नॉलेज हर किसी को पहुंचे। और फिर मतलब हम लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हम लोग कार्य करें। तो इधर में जो भी रूप गोस्वामी जी ने बताया, रूप गोस्वामी ने बताया, जो भी इधर में जो गिव अप करने के लिए बोला है ना, अध्यात्म प्रयास से, जो भी इधर में 6 गुण जो चीजें हैं जो इसको गिव अप करने, ये हम लोग के भक्ति के लिए भी साथ साथ भक्ति के लिए भी क्या बोलते हैं अनुकूल है, साथ साथ में ये संसार में रहने वालों के लिए भी अनुकूल है। जितना भी इधर में बताया ना क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व होता है, पॉलिटिकल मैरिज में ये भी सोल्व हो जाएगा, इकोनॉमी के लिए जितना भी प्रॉब्लम है वो भी सब सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग अगर मान लो हम लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं होने से भी, जो अगर बाहर को लोग भी अगर ये रूप गोस्वामी का जो भी चीज़ें हैं 6 चीज़ें इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग ये गिव अप करना हम लोग के लिए उद्देश्य नहीं है। हम लोग का गिव अप करने के बाद हम लोग का आना है भक्ति पे, कृष्ण कॉन्शियसनेस पे। तो हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस के ही जरिए हम लोग ये सबको गिव अप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मैंने अभी रिसेंटली एक किसी क्लास में ये सुना था कि जैसे हम लोग इसी से रिलेटेड था एक्चुअली, वो जो हम लोग कोई नहीं लेते मौन व्रत लेते हैं, तो एक्चुअली वो मौन व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग टोटल सच मतलब कुछ ना बोले, एकदम साइलेंट हो, ऐसा नहीं। एक्चुअली उसका मतलब एक्चुअली उसका उद्देश्य होता है प्रजल्पयी, कि हम लोग फालतू का बात ना करें और बस कृष्ण के बारे में बात करें। तो मतलब मौन व्रत को हम लोग एकदम ऐसा प्रजल्प से रिलेट करके वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का टेक्स्ट 2 भी खत्म हो गया है। हमने अत्याहार के बारे में डिस्कस कर लिया, ओवर ईटिंग या फिर ओवर कलेक्टिंग, और प्रयास मतलब ज़्यादा प्रयास करना किसी भी जो मटेरियली जो बहुत मुश्किलें मिलने के लिए उसके लिए पाने के लिए हमेशा प्रयास एक्स्ट्रा एफर्ट डालना। और फिर प्रजल्प के बारे में आइडल टॉकिंग, फालतू की बातें कृष्ण के अलावा,
और फिर नियमग्रह यानी कि जो नियम हम फॉलो करते हाँ हैं, नियम खाली follow करने नाम बस के लिए नहीं। हाँ वो बस ऐसे ही फॉलो करने के लिए ही बस है करके फॉलो कर लिए, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो नहीं जानते और मतलब असली पर्पस के लिए नहीं कर रहे उसको। और फिर जनसंघर्ष मतलब एसोसिएशन वर्ल्ड माइंडली पर्सन से नहीं करना चाहिए हम लोग को, जो बाहर के मेटेरियलिस्टिक पर्सन हो गए या मायावादी हो गए, ये लोग सबसे दूर रहना चाहिए और भक्तों की डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना चाहिए। और फिर लोलियम जो आज हमने डिस्कस किया ग्रीड के बारे में, जो लॉन्गिंगनेस होता है, जो ग्रीडीनेस होता है, ये सब हम लोग को नहीं रखना चाहिए। तो अगर ये 6 एक्टिविटीज है, अगर इसको हम लोग नहीं करेंगे तो जो डिवोशनल सर्विस में हम लोग की भक्ति के मार्ग में जो बाधा आता है, जो एंटेंगलमेंट होता है, वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। और इसको अगर हम लोग नहीं करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, तो फिर हम लोग के एक तो भौतिक जीवन में भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। साथ साथ में हम लोग आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति मतलब अपग्रेड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, इसी में हम लोग आज का सेशन विराम करते हैं। आगे हम लोग फिर टेक्स्ट ट्री करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जैसे हम लोग ने टेक्स्ट ट्री में देखा था क्या अनफेवरेबल है डिवोशनल सर्विस के लिए, तो टेक्स्ट ट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिवोशनल सर्विस के लिए ऐसा क्या क्या फेवरेबल है। इसमें भी वही 6 प्रिंसिपल्स है, उसमें 6 एक्टिविटीज था जो अनफेवरेबल, इसमें 6 एक्टिविटीज है जो फेवरेबल है। तो ठीक है, आज इधर ही हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग सबका धन्यवाद, आप लोग आए। हरे कृष्णा। जब प्रसाद हरे कृष्णा।